اور یہ پرابلم جو ان سا وہ یہ ہے کہ ازدواجی زندگی اچھی نہیں ہوتی, پرسنل لائف لوگوں کی نہیں اچھی. اور ایک بات بڑی امپورٹنٹ بتا دوں کہ جو آپ کو سٹریس دے رہا ہوتا ہے نا وہ بھی سٹریس میں ہی ہوتا ہے. یعنی سٹریس دینے کے لیے لازم آپ کے پاس سٹریس ہونا بھی چاہیے. اب ہوتا کیا ہے کہ اگر پرسنل لائف آپ کی اچھی نہیں ہے, ازدواجی زندگی اچھی نہیں ہے, تو اس سے بڑے سائیڈ افیکٹ اس کے ہوتے ہیں. آپ کی پرسنل لائف کا اثر جو ہے وہ آپ کی پروفیشنل لائف پہ بھی پڑتا ہے. اور آپ کی جو پروفیشنل لائف ہے, بالخصوص اگر آپ کی پروفیشنل لائف میں آپ کا باس بزنس سسٹم بہت سٹریس والا ہے اور ساتھ میں پرسنل لائف بھی اچھی نہیں ہے, تو سٹریس آپ کی اور بڑھ جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں خوش قسمت انسان وہ ہے جس کی پرسنل لائف اچھی ہے. اچھا, اس کو اس کے کئی بینیفٹ ملتے ہیں. پہلا بینیفٹ تو یہ کہ سٹریس لیول اس کا مینج ہو جائے گا. دوسرا جو سب سے بڑا فائدہ, اس کو ہائی جیک نہیں کو کر سکتا, اس کو کوئی چیز ایسی اٹریکٹ نہیں کرتی کیونکہ پرسنل لائف اچھی. تیسری سب سے بڑی بات یہ کہ گھر میں اگر سکون ہے تو پھر آپ کام کی جگہ پہ بھی اطمینان اور سکون سے بیٹھ کے کام کر سکیں گے. سب سے بڑی بات, آپ میں ایک نا کمپلیشن کا احساس بڑھ جاتا ہے کہ وہ کمی نہیں ہے, کانفیڈنس بہت زیادہ آ جاتا ہے, بڑا ہائی ہو جاتا ہے. کاشف لاہور سے ہمارے ساتھ موجود. کاشف صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاہ جی کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کا بڑا شکر. کاشف بھائی کوئی سوال ہے آپ کا؟ اچھا جی بالکل, میرا ایک سوال ہے. اچھا, آپ جاب کرتے جاتے اگر 7 to 8 years آفٹر میری 7 سے 8 سال سروس ہوگی ہے, اب ایکسپیرینس لیول اس لیول کا ہے کہ مجھے جو سینئر ہیں, میرے جو مینیجرز ہیں, ان کی کچھ مسٹیکس ہیں, ان کی کوئی ایسی میری آبزرویشن اس لیول پہ ہے کہ میں ان میں کوئی نہ کوئی ڈیفیکٹس نکل آتے ہیں یا مجھے نظر آ جاتے ہیں, تو میں رسپونڈ بیک کر دیتا ہوں. اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا, میں اسٹریٹ فارورڈ ہو جاتا ہوں. اس چیز کا کیا سلوشن ہے؟ میں مطلب اس چیز سے مجھے پرابلم بھی ہوتی ہے, میری جاب میں بھی پرابلم ہوتی ہے, لیکن وہ ایگری بھی کرتے ہیں. لیکن وہ بات وہی ہے کہ استاد سے زیادہ ہوشیار نہیں ہونا, وہ والا سلسلہ کار دیکھ کے وہ پھر نہ. بہت بہت شکریہ. کاشف صاحب کا سوال آج کا تیسرا اچھا سوال ہے, ایسا سوال ہے جس کو ہم بھول نہیں سکتے. کاشف صاحب کا سوال یہ ہے کہ آپ اگر سبارڈینیٹ ہیں, جونیئر ہیں, اور آپ کا باس, آپ اس کا فالٹ دیکھ لیتے ہیں. کاشف بھائی نے خود ہی بتا دیا کہ جب آپ خود ریئیکٹ کر جاتے ہیں یا آپ منہ پہ انہیں بتا دیتے ہیں یا ایکسپوز انہیں کر دیتے ہیں یا احساس دلاتے ہیں کہ وہ غلط ہے, تو پھر ہوتا کیا ہے کہ آپ کا کانفلکٹ سٹارٹ ہو جاتا ہے. اچھا, میں اپنے تمام سننے والے ناظرین کو کہوں گا کہ ہمیں کچھ آرٹ سیکھ لینے چاہیے, کچھ فن سیکھنے چاہیے. مثلا تنقید کیسے کرنی چاہیے, سچ بھی کیسے بولنا چاہیے, سچ کی ٹائمنگ ہوتی ہے, سچ کیسے بولنا ہے, سچ کو بہتر انداز میں کیسے کہا جا سکتا ہے. اچھا, سچ کی مصلحت ہے. سر ہم بے صبرے ہوتے ہیں نا کہ بس جو پتا ہے سب کچھ بول دو. ایک کم از کم تہذیب کا دائرہ یہ ہے کہ اگر کسی میں غلطی ہے تو اس کو ایکسپوز نہ کریں, ایسے ایکسپوز نہ کریں یا اس کا اعلان ایسا نہ کریں کہ وہ اس کی جو ان سے تشہیر ہو جائے اور اس کا جو ان سے امیج خراب ہو جائے. تو اگر آپ اچھا رابطہ, اچھا تعلق بنا کے دیکھو, آپ کا میرا ایک بھائی بہن والا بھی تعلق ہے, میں آپ اس تعلق کی بنیاد پہ کہیں آپ کو نصیحتیں کر سکتا ہوں, لیکن اگر میں ٹانٹ کر کے کہوں گا مائنڈ کر دو گی. اگر میرا وہ تعلق بڑا اچھا ایک ریسپیکٹیبل تعلق ہے تو میں آپ کو کہوں گا بھی برا نہیں لگے گا. اندازے بیاں پہ بالکل ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ بھی مجھے ایسے کہہ سکتے ہو. ہوتا یہ ہے کہ ہم نے وہ ریلیشن اچھا نہیں بنایا ہوتا, جب ہم کہتے ہیں تو برا لگتا ہے. بالکل. آصفہ فیصل آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہے. جی بہن السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا آپ سے یہ کوشچن ہے, میری ایک فرینڈ ہے جس کی مطلب کہ پچھلے دنوں میں اس کا بریک اپ ہوا ہے, جس کی وجہ سے وہ دن رات اس بات سے بہت زیادہ پریشان رہتی ہے. تو نہ اس کو رات کو نیند آتی ہے, نہ مطلب کہ وہ فیملی میں بھی بیٹھی ہو نا تو خود کو مطلب کہ اکیلا فیل کرتی ہے. تو اس کا کیا ریزن ہے؟ ٹھیک ہے آصفہ. اچھا, آصفہ کا جو سوال ہے, کیونکہ سماجی ایک مسئلہ ہے, بریک اپس ہو جاتے ہیں, منگنی ٹوٹ جاتی ہیں, کوئی کسی کا ایک تعلق تھا, امید تھی شادی ہو جائے گی اور وہ ریلیشن ختم ہو گیا, ٹوٹ گیا. اچھا, ایک تو بات یاد رکھیے گا کہ جب بھی آپ اس طرح ایموشنلی انوالو ہیں اور وہ ریلیشن ٹوٹ گیا تو عموماً اگر آپ نے 100% رابطہ ختم کر دیا, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, رابطہ ختم کر دیا اور طے کر لیا پورا اللہ پہ توکل کر کے کہ میں نے اس ڈپریشن والی فیز سے باہر آنا ہے, تو اس کو 3 ماہ لگتے ہیں فضا, 3 ماہ میں آپ ٹوٹلی باہر آ جاتے ہیں, آپ اس فیز سے باہر آ جاتے ہیں. لیکن پرابلم کیا ہوتی ہے, لوگ رابطہ بھی ختم ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ کوئی نہ چٹ چیٹ شروع رکھتے ہیں, کوئی نہ کوئی واٹس ایپ کا سورس رکھتے ہیں, تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ وہ سٹریس جو ان سی ہے وہ پھر کنٹینیو رہتی ہے. تو اگر اللہ پہ توکل کر کے 3 ماہ کا چلا کاٹ لیتے ہیں تو باہر آ جاتے ہیں. مطلب کہیں نہ کہیں کنیکشن رہتا ہے. آسمہ لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہے. جی بہن السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام. سر میں نے یہی جو آج ٹاپک چل رہا ہے وہی میں نے بات کرنی ہے کہ جب ایک وہم آپ کے دماغ میں گھس جاتا ہے وہ کیسے نکلے, میری سمجھ سے باہر ہو جاتا ہے کہ وہ کیسے نکلا جائے. بہت بہت شکریہ, آپ کا سوال بڑا اچھا ہے. انہوں نے کہا جی وہم اگر آ جاتا ہے تو وہم سے جان کیسے چھڑیں. بڑی سادہ سی بات ہے, اگر آپ کو 10 سال سے وہم آتے ہیں ذرا پیچھے مڑ کے دیکھیں کتنے وہم پورے ہوئے ہیں. اگر 10 سال کے وہم پورے نہیں ہوئے تو آئندہ جو وہم آئیں گے ان کی بھی حقیقت نہیں ہے.
देखो जब बंदे की अपनी हेडलाइट काम ना गाड़ी की कर दी हो तो क्या करते हैं पता है, हम अगली गाड़ी को फॉलो करते हैं। यानी कि वहम वाले बंदे को कुछ अरसा सहारा लेना चाहिए किसी से मुशावरत और किसी से शेयरिंग का, कि मुझे ये वहम आते हैं, जरा आप बता दें कि ये वहम की हकीकत भी है कि नहीं है, या खुद जुर्रत करके इन्वेस्टिगेट कर लेना चाहिए और फिर असूल बना लेने चाहिए और असूलों को विल पावर से इंप्लीमेंट करना चाहिए कि अब कुछ हो जाए दुनिया इधर की इधर, हमने इन असूलों को फॉलो करना। बिल्कुल ठीक है। शाह जी, शाहिद साहब हैं लाहौर से। जी शाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा शुक्र शाहिद भाई। शाह साहब, मैंने एक सवाल करना है आपसे। आपकी बड़ी पुरमगज गुफ्तगू होती है और मैं बड़े टिप्स ले रहा हूँ इसमें से, और आवाम बहुत टिप्स ले रहे हैं। जी जी शाहिद भाई। शाह साहब, अल्लाह आपको जिंदगी दे, खुदा के लिए लोगों को बताते रहे, भलाई के लिए। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि जो ये आप इतनी बातें बताते हैं, हम टिप्स में याद रखते हैं, ये बताएं कि नया बिजनेस किया है। शाहिद साहब ठीक है, बहुत शुक्रिया। स्ट्रेस लेवल एक शाहिद साहब के सवाल को हम नहीं समझ सके, या कट गया या काट दिया गया। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप अपना टीवी उसकी आवाज बंद करके कॉल करें। आप एक ही वक्त में टीवी की आवाज भी ऑन कर देते हैं और क्वेश्चन भी करते हैं, तो आप जवाब उनका भी यकीनन टेलीफोन की बजाय टीवी से लेने की कोशिश कर रहे होते हैं। उनका सवाल भी यकीनन वही था कि जो बिजनेस जो हम स्टार्ट करते हैं, लॉस वगैरह का, इस तरह से उनका कोई सवाल होगा, तो इसका जवाब जो है शाह जी पहले भी डिटेल में दे चुके हैं। सर, स्ट्रेस की बात हो रही है, ज़हनी लेवल की बात हो रही है, तो इस्लाम पे हम गुफ्तगू कर रहे थे कि इस्लाम इसका क्या कहता है। एक तो आपने कह दिया कि तवक्कल होना बहुत जरूरी है, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना होना, ये दूसरी बात है। तीसरी बात ये कि देखिए, आप अगर आप मसाइल का शिकार हैं, प्रॉब्लम्स का शिकार हैं, तो मसले प्रॉब्लम्स तो दुनिया के बड़े बड़े लोगों को फेस करने पड़े। आप जब आप अब देखते हैं कि मेरे जो रोल मॉडल्स हैं, जो मेरे लिए अमली नमूना है, उनको भी प्रॉब्लम्स, उनको भी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा, तो वो जो प्रॉब्लम और चैलेंज आप उनको सॉल्व करते देखते हैं, सामना करने देखते हैं, तो फिर आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। और एक चीज हमने साथ में कोट कर दी कि अगर आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं और लाइफस्टाइल को चेंज करने की वजह से आपका जो सा वो स्ट्रेस लेवल बेहतर हो जाता है। लाइफस्टाइल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि आप दोपहर को खाने के बाद कलूला जरूर करें। मैं बार बार जोर दे रहा हूं कि आज की रिसर्च आ चुकी है कि खाने के बाद का 30 मिनट्स का वक्त बेकार वक्त होता है, अगर आप उसमें रेस्ट कर लें तो आपका एनर्जी लेवल जो सा वो बड़ा हाई हो सकता है। शाह जी, फैसलाबाद से हैं मुनहिम हमारे साथ। जी बहन, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी शाह साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का बड़ा शुक्र भाई। जी 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 शाह साहब, मेरा क्वेश्चन ये है कि लाइफ में एक इंसान है, वो अल्लाह के रास्ते पे चल रहा है या चलने की कोशिश कर रहा है, जी जी, ठीक है, इन गिवन सर्कमस्टांसेस, तो कुछ अचानक इस तरह का कुछ होता है कि वो उसके ज़हन में ख्यालात ऐसे आना शुरू हो जाते हैं कि ये दुनिया की जिंदगी या दुनियादारी जो है, इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दो, या आप यूं कह लें इसको कि अल्लाह का तो जो ताल्लुक है, उसके साथ जो कनेक्शन है, वो वीक होना शुरू हो जाता है। वो जो ठीक है, बहुत शुक्रिया मनी साहब। अच्छा देखिए, गुजारिश यहाँ पर ये है कि जो अल्लाह के साथ ताल्लुक वीक होना, ये आप और अल्लाह के बीच में है। exactly. आप अगर देखें, अल्लाह तो आपको पूरा मौका देता है, रिन्यू कीजिए। आप 2 नफल पढ़िए, अल्लाह से तौबा कीजिए, उस ताल्लुक को रिन्यू कर दीजिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि देखें, तहज्जुद का वक्त जब आता है, आसमान पे आके अल्लाह जो सा वो हदीस का मफहूम है, वो कहता है मेरा अल्लाह कि है कुछ जिसकी आवाज में सुनूं, तो किसी दिन मेरे भाई एक तहज्जुद लगाएं और अपनी अर्जी को अल्लाह की बारगाह में पेश कर दीजिए कि मालिक, मेरा ताल्लुक तेरे से कमजोर है। मुझे बड़ा खूबसूरत जुमला वासिफ अली वासिफ का याद आया कि अल्लाह को राजी करने से पहले ये जान लेना चाहिए कि वो नाराज भी है कि नहीं है, कहीं ये हमारा अपना ही वहम तो नहीं है, हमारा अपना ही वहम तो नहीं है। अल्लाह मेरा राजी हो, अल्लाह मेरा आपसे मोहब्बत करता हो और आपको वहम गुजरे, ख्याल आ जाए कि मेरा अल्लाह नाराज ही नाराज है। भाई अल्लाह तो वो तो राजी होने वाला अल्लाह है। वो तो कहता है कि मेरा बंदा मेरी तरफ आए सही, आप कदम उठाइए और अल्लाह जो उनसे आपको माफ कर देता है। ठीक है शाह जी, ज़हनी दबाव से छुटकारा किस तरह से मुमकिन है, ये आपसे जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। फेसबुक पर आप लाइव देख सकते हैं प्रोग्राम, facebook.com/7news TV पर। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, गुफ्तगू में एक मरतबा फिर से हाजिर है। बात हो रही है स्ट्रेस के हवाले से, जहनी दबाव के हवाले से, कि जहनी दबाव से छुटकारा किस तरह से पाया जाए। शाह जी, लगता है आज जितने भी कॉलर्स आए हैं, जितने भी सवालात किए हैं, वो हमारी प्रोफेशनल लाइफ। मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप पे काम का इतना बर्डन है, इतने प्रोजेक्ट्स आपने एक ही टाइम पे शुरू किए होते हैं, आप स्ट्रेस लेवल को किस तरह से कम करते हैं? अच्छा, मैं बड़ा आसान सा जवाब अगर दूं ना, मैं जो लोगों को पढ़ाता हूँ ना, उस पर पहले अमल करता हूँ।
आम तौर पर ट्रेनर्स ऐसा नहीं करते। मैं क्योंकि बड़ा करीबी जानता हूँ ट्रेनर्स को भी, स्कॉलर्स को भी, बहुत से लोग सिर्फ अच्छी अच्छी बातें कहते हैं, उसमें से अमल नहीं करते। मैं मेरी पूरी कोशिश होती है कि वो टाइम मैनेजमेंट की टेक्निक्स, प्लानिंग की टेक्निक्स, प्रोएक्टिवनेस की और वर्क लाइफ बैलेंस की जो टेक्निक्स हैं उनमें से मैक्सिमम को अप्लाई करूं। अच्छा, बड़ी मजे की बात बताऊं, अगर आपको प्लानिंग करनी आती हो ना तो एक दिन बहुत सा काम आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी प्लानिंग अच्छी ना हो तो फिर एक दिन में आप कई दिनों का काम जो सा वो प्लानिंग सीखते हैं या आपको खुद से? मुझे प्लानिंग क्यों करनी आती है, मैंने तो सिखानी होती है। मैं तो दूसरों को सिखाता हूँ कि एक डे को प्लान कैसे करना है, इफेक्टिव डे कैसे बनाया जा सकता है, टाइम मैनेजमेंट कैसे, रिसोर्स मैनेज कैसे करने हैं, अपनी स्ट्रेंथ को, अपने चीजों को कैसे चैनलाइज करना है, डेलीगेट कैसे करना है, टीम कैसे बनानी है, लीडरशिप क्या, ये मैं पढ़ाता हूँ। तो मेरे लिए बड़ा आसान हो जाता है कि जब मैं उन चीजों को खुद अप्लाई करता हूँ तो उसके रिजल्ट्स मुझे मिले। बिल्कुल ठीक है। शाह जी, आपसे पूछेंगे भी आप क्या क्या अप्लाई करते हैं। अनम लाहौर से हमारे साथ मौजूद है। जी अनम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कासिम जी शाह, मैंने आपसे एक बात करनी है। ये बात करनी है कि मैं ज़हनी दबाव में रहती हूँ हर वक्त। मेरी शादी हुई थी तकरीबन 1 साल पहले, तो 9 माह में उधर रही हूँ। उसके बाद मतलब अभी डिवोर्स नहीं हुआ, तो उन लोगों ने मुझे इधर भेज दिया है। तो अब मैं ज़हनी दबाव का इतना शिकार हूँ, बहुत ज्यादा। ठीक है ना, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मेरी बहन का जो मसला है, बेशुमार क्योंकि बहनें सुन रही हैं, एक मैं बताऊं कि जिसका भी कोई पर्सनल लाइफ अज़दवाजी जिंदगी का मसला है उसको 3 काम जरूर करने चाहिए। एक, जल्दबाजी छोड़ देनी चाहिए। हाँ। जल्दबाजी जब भी आपकी फैमिली करेगी या एक पार्टनर करेगा तो फिर ये खत्म हो जाएगा सारा कुछ। दूसरी बात है कि उसे ऑप्टिमिस्ट जरूर रहना चाहिए, पूरी उम्मीद रहना चाहिए। मैंने बड़े बड़े खराब रिलेशन को ठीक होते देखा है, बड़े बड़े ठीक खराब भी हो जाते हैं। तीसरी चीज जो उनसी बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि मियाँ बीवी का रिलेशन बुनियादी तौर पे मियाँ बीवी का रिलेशन है। जब आप उसमें स्पेस रखते हैं कोई सास की, किसी की, जेठानी की, नंद की, तो फिर वो रिलेशन खराब होता है। हमें 9 माह का मेरी बहन को टाइम मिला, तो 9 माह में वो एक रिलेशन की बॉन्डिंग को मजबूत नहीं कर सकी। अगर वो रिलेशन की बॉन्डिंग को मजबूत कर लेती तो कभी भी ऐसा नहीं होना था कि उन्होंने भेज दिया है आपको 9 माह, यानी 9 माह एक अपॉर्चुनिटी मिली अपनी जगह बनाने की। जो शौहर है वो भी तो फिर कभी सास के पीछे, बीवी के पीछे, जिसके मर्जी पीछे मजबूत इंसान तो ना हुआ। बिल्कुल ठीक है। अक्सा लाहौर से हमारे साथ मौजूद है। जी अक्सा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये कहना था कि मैं ज़हनी दबाव का बहुत ज्यादा शिकार हूँ। मेरे ज़हन में यही घूमता रहता है कि मैंने सुबह मर जाना, रहना ही नहीं है। ठीक है अक्सा, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। अक्सा, ये एक ऐसा मसला है जो कहीं ये वहम हो जाता है बाज़ औक़ात किसी को। अच्छा, इसके पीछे भी फैक्टर्स हैं। इसके पीछे बाज़ औक़ात ऐसा होता है आपने कुछ डेथ देखी होती हैं, या उनके तज़किरे सुने होते हैं। जब वो इंसिडेंट्स हुए होते हैं तो आप ज़हनी तौर पे मजबूत नहीं होते, तो वो आपके जो उनसे वो ज़हन में बैठ जाते हैं। वहम का तो आपने पहले भी बहुत अच्छे से दूसरा इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपको डेथ का बार बार ख्याल आता है तो अगेन आपको तजदीद ईमान की जरूरत है। आपको अल्लाह का नाम लेके दोबारा कलमा जरूर पढ़ना चाहिए कि जिंदगी मौत मेरे अल्लाह के हाथ में है। हाँ। अगर अल्लाह के हाथ में है तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो मेरी जिंदगी को मुझसे छीन सकती है। जब तक मौत आनी नहीं है जिंदगी ने कायम दायम रहना है। असद लाहौर से हमारे साथ मौजूद है। असद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाह साहब से बात करनी है। मैं शाह साहब ही बोल रहा हूँ। कोई सवाल है भाई आपका? अच्छा सर, सवाल ये है कि ऑफिस में जो काम मेरे नहीं भी होते ना, मुझे मुख्तलिफ कोलीग्स कह देते हैं, जो नाम मुझसे नहीं होती, तो वो ओवर बर्डन की वजह से इसलिए ज़हनी दबाव काफी रहता है। इसका ये आज का चौथा बड़ा अच्छा सवाल है कि बहुत से हमारे जो उनसे जूनियर्स हैं उनका ये सवाल है कि हमें वो काम भी कह दिए जाते हैं जो हमारे काम नहीं होते। पहली बात, काम पकड़ने से पहले, काम शुरू करने से पहले भी कुछ असूल ज़वाबित बनाने चाहिए। सही। जहां आप काम कर रहे हैं वहां पर अपॉइंटमेंट लेटर जब लें तो उस पर मेंशन होना चाहिए कि आपकी ड्यूटीज क्या है, ड्यूटीज क्या है। ड्यूटीज भी वेल डिफाइन होनी चाहिए। हाँ। ये ना हो कि बताया कुछ जा रहा है और साथ में कहीं और काम मिल रहे हैं। तीसरी बात, हमें ना भी कहनी सीखनी चाहिए। सर हमारी ड्यूटी आवर्स ना कंफर्म है ना हमारे काम। एंकर्स तो जोन से हैं, न्यूज तो जोन सा, वो तो फिर एक ऐसा काम है जिसमें चीजें बहुत बर्डन है। देखो ये तो प्रोफेशन की प्राइस है। आपको अगर स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, अल्लाह ताला आपको इससे शोहरत दे रहा है और आप अपना कंट्रीब्यूशन सहाफी के तौर पे, एंकर के तौर पे करें तो कीमत है। तो ये कीमत तो आपको अदा करनी पड़ती है। हमारे कई भाई दूसरे मुल्कों में कमा रहे हैं, अर्न करें, कीमत है। आपको बाहर रह के अर्न करना पड़ता है। कई हमारे भाई जो उनसे हैं वो महाज पे जंग लड़ रहे हैं फौज में, वो कीमत है। आपको उस फौज में रहने की भी कीमत अदा करनी पड़ती है। तो दुनिया में बाज़ जॉब्स ऐसी होती हैं जिसकी कीमत आपको स्ट्रेस की शक्ल में चुकानी पड़ती है, लेकिन मैनेज जरूर करें, मैनेज जरूर करना पड़ता है। अच्छा शाह जी, छुटकारा किस तरह से मुमकिन
मुमकिन है इस ज़हनी स्ट्रेस से? क्योंकि जितने भी सवालात और जितने टॉपिक में रह चुके थे जो आपसे पूछने थे वो हमारे कॉलर्स ने पूछ दिए, अब इनसे छुटकारा किस तरह से पाया जा सकता? देखो, सबसे पहले स्ट्रेस से कॉप अप करने, इसको मैनेज करने का बेहतरीन जो तरीका है वो लाइफस्टाइल चेंज करना चाहिए। हमें हेल्दी लाइफस्टाइल पे जाना चाहिए, हमें नींद पूरी करनी चाहिए, हमें एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए, हमें ऐसे काम करने चाहिए जो हमें खुशी देते हैं, हमें मजा देते हैं, हमें अच्छी खुराक लेनी चाहिए, हमें अच्छी कंपनी में बैठ के गप भी लगानी चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए, हमें कुशन्स चाहिए। देखिए, स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए अगर आपकी जिंदगी में कुशन्स नहीं, कैथारसिस का सोर्स नहीं है, इशफाक साहब के बकौल आपके पास वो कंधा नहीं है जहां पे आप सर रखें, आंसू बहाएं और दोबारा जिंदगी की जंग लड़ने के लिए तैयार हो जाएं, तो स्ट्रेस लेवल हाई रहेगा आपका। बिल्कुल ठीक है। शाह जी, उमर फारूक है लाहौर से हमारे साथ। उमर साहब अस्सलाम वालेकुम। उमर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाह जी कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का बड़ा शुक्र। उमर भाई, कोई सवाल है आपका? बहुत बड़े फाइन है। मेरा एक सवाल है आपसे। मैं तकरीबन 8 साल से फार्मास्यूटिकल में हूँ, प्रोफेशनल लाइफ के अंदर। जी जी। तो मैं लेकिन अभी तक कोई खातर ख्वाह कोई कामयाबी हासिल नहीं कर सका। कोई भी इसकी रीजन हो सकती है, लेकिन उस वजह से मेरे जहन के ऊपर ऐसा वो खौफ पैदा हो गया कि मैं आगे प्रमोशन। उमर भाई, आपकी स्ट्रेंथ क्या है? आप क्या क्या काम कर सकते हैं? क्या मार्केटिंग कर सकते हैं चीजों की? जी शाह जी, बिल्कुल कर सकता हूँ। आपकी कम्युनिकेशन स्किल मैं देख रहा हूँ अच्छी है ऐसा ही? जी शाह जी। और आप जो है वो अपनी बात को बड़े अच्छे से समझा भी सकते हैं, कन्विंस भी कर सकते हैं, ऐसा ही है? जी शाह जी, बिल्कुल ऐसा है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका सवाल मैं समझ गया। अब देखिए, मैंने ये सवाल इसलिए किए थे कि अगर एक बंदे को अपनी स्ट्रेंथ पता है तो फिर उसको जॉब को स्विच कर लेना चाहिए। वो एक जगह छोड़े किसी दूसरी जगह चल जाए। याद रखिए, एजुकेटेड बंदा स्ट्रेस में होता है, स्किल्ड बंदा स्ट्रेस में नहीं होता। जिसको अपना काम आता है तो एक दर बंद 100 दर खुल जाता है। स्किल का भी पता होना चाहिए ना कि आप में ये एबिलिटीज हैं, ये स्किल्स हैं। इनकी आवाज, इनके बोलने का स्टाइल, इनकी कन्विंसिंग पावर एक अच्छे मार्केटर की है। अगर ये मार्केटिंग के किसी भी काम में जाते हैं जो एक्सेल कर सकते हैं, प्रॉब्लम ये होती है हमें डर होता है। डर वाला बंदा जो सा वो फ्लाई नहीं कर सकता, उड़ नहीं सकता। आपको ट्राई जरूर करना चाहिए, रिस्क लेना पड़ता है। अच्छा शाह जी, बात हो रही थी कम करने की। आप पे चूंकि काम का इतना बर्डन है, एक दिन में इतने काम मैनेज करना, आप क्या क्या एक्टिविटीज हैं जो करते हैं जो कि आपके स्ट्रेस लेवल को कम कर दें? देखो, मैं तो प्लानिंग करता हूँ। अगले दिन से पहले, आने से पहले पिछले दिन में बैठ के प्लानिंग कर लेता हूँ। कल का दिन है मेरा, मिसाल है, तो मुझे ड्राइव करना है, आज रात में ड्राइव करना है, सुबह में सेशन है, सेशन देके वापस लाहौर पहुंचना है। मैंने ईच एंड एवरीथिंग को प्लान किया। अच्छा, मेरी टीम भी प्लानिंग मुझे दे देती है। मतलब मेरे पास गाड़ी में इस वक्त वो लेटर पड़ा हुआ है जो मेरी टीम ने मुझे कल का पूरा पेज प्लानिंग का दे दिया हुआ है कि सर इतने बजे आप नाश्ता कर रहे होंगे, इतने बजे आप उठ चुके होंगे, इतने बजे आप लेक्चर दे रहे होंगे, इतने बजे लेक्चर क्लोज हो चुका, इतने बजे हम एक लंच पे हैं। अच्छा, जब आपके पास एक पूरा कैलेंडर और शेड्यूल होता है तो फिर आपको स्ट्रेस नहीं मिलता। प्रॉब्लम क्या होती है, हम रैंडम शुरू कर देते हैं काम, और जब रैंडम करते हैं तो फिर स्ट्रेस लेवल जो सी है। मैं मल्टीटास्कर हूं, मैं बहुत से काम करने का आदी हो चुका हूं। तो आपको हमेशा प्लानिंग के साथ अपना दिन गुजारना चाहिए। ठीक है।